دنیا اس وقت جس دور سے گزر رہی تھی وہ صرف تلواروں کی جھنکار کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ نسلوں کی بقا کا امتحان تھا۔ ایشیا کی وسیع و عریض چراگاہوں میں بسنے والے ترک قبائل مسلسل ہجرت پر مجبور تھے۔ منگول طوفان مشرق سے اٹھ رہا تھا، بازنطینی سازشیں مغرب میں پل رہی تھیں، اور مسلمان دنیا اندرونی کمزوریوں سے دوچار تھی۔ ایسے میں ایک چھوٹا سا قبیلہ، کائی قبیلہ، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کائی قبیلہ اوغوز ترکوں کی ایک شاخ تھا جو صدیوں سے گھوڑے، تلوار اور خیمے کے ساتھ جینا جانتا تھا۔ ان کے لیے زمین مقدس نہیں تھی، عزت مقدس تھی۔ ان کے سردار سلیمان شاہ ایک مدبر، نڈر اور دیندار انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ طاقت صرف بازو میں نہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت میں ہوتی ہے۔ اسی سلیمان شاہ کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے مقدر میں صرف ایک قبیلے کی نہیں بلکہ آنے والی صدیوں کی تاریخ لکھی جا چکی تھی۔ یہ بچہ ارطغرل تھا۔ ارطغرل کی پیدائش کوئی شاہی تقریب نہیں تھی، نہ محل تھا نہ چراغاں، ایک سادہ سا خیمہ، چند دعائیں اور ماں کی گود۔ لیکن تاریخ اکثر وہیں سے جنم لیتی ہے جہاں ظاہری شان نہیں ہوتی۔ ارطغرل کی والدہ ہائمہ خاتون ایک صابر، باوقار اور باشعور عورت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹے صرف جسم سے نہیں، تربیت سے مرد بنتے ہیں۔ انہوں نے ارطغرل کو بچپن ہی سے نظم، ضبط اور دین کی طرف مائل کیا۔ ارطغرل کا بچپن گھوڑوں کی ٹاپ، تیروں کی سیٹی اور تلوار کی مشق میں گزرا۔ کائی قبیلے میں ہر بچہ لڑاکا نہیں بنتا تھا، مگر ہر لڑاکا اخلاق کا پابند ہوتا تھا۔ ارطغرل میں شروع سے ایک بات نمایاں تھی، وہ سوال کرتا تھا۔ وہ آنکھ بند کر کے روایت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ یہی عادت آگے چل کر اسے باقیوں سے مختلف بنانے والی تھی۔ ارطغرل کے بھائی بھی اپنے اپنے مزاج میں نمایاں تھے۔ گندودو سب سے بڑا بھائی تھا جو ہمیشہ روایت اور قبائلی عزت کو مقدم رکھتا تھا۔ سنگرتگین خاموش طبع مگر بہت تیز نظر رکھنے والا تھا، جو خطرے کو بولنے سے پہلے بھانپ لیتا تھا۔ اور سب سے چھوٹا دندار بے تھا، جوان دل اور جوش میں رہنے والا، جو بعض اوقات جذبات میں آ کر فیصلے کر بیٹھتا تھا۔ سلیمان شاہ اپنے بیٹوں کو صرف جنگجو نہیں بلکہ رہنما بنانا چاہتے تھے۔ وہ انہیں مجالس میں بٹھاتے، فیصلوں کے پیچھے کی سوچ سمجھاتے اور اکثر کہتے تھے، طاقتور وہ نہیں جو زیادہ قتل کرے، طاقتور وہ ہے جو حق کے وقت کھڑا ہو سکے۔ ادھر حالات تیزی سے بدل رہے تھے، منگول حملے بڑھ رہے تھے۔ کئی ترک قبائل یا تو ختم ہو چکے تھے یا دشمنوں کے ساتھ سمجھوتے کر چکے تھے۔ کائی قبیلہ بھی مسلسل دباؤ میں تھا، چراگاہیں چھن رہی تھیں، تجارتی راستے غیر محفوظ ہو چکے تھے اور اندرونی اختلافات سر اٹھا رہے تھے۔ ارطغرل اپنے بھائیوں کے درمیان بھی نمایاں ہونے لگا۔ گندودو تجربے کی بات کرتے تھے، سنگرتگین خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتے تھے، اور دندار بے دل میں جوش رکھتے تھے۔ مگر ارطغرل وہ تھا جو خطرہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کا راستہ تلاش کرتا تھا۔ ایک دن کائی قبیلے کو خبر ملی کہ قریب ہی ایک قافلہ لٹ چکا ہے اور بازنطینی سرحدوں پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ سلیمان شاہ نے مشورہ طلب کیا۔ نوجوان ارطغرل نے پہلی بار بڑے مجمع میں رائے دی۔ اس کی بات میں جذبات نہیں، حکمت تھی۔ کچھ بزرگ ناراض ہوئے، مگر سلیمان شاہ خاموشی سے مسکرا دیے۔ وہ جان گئے تھے کہ قیادت کا بیج پک رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب ارطغرل کی زندگی میں ایسے چہرے داخل ہونے لگے جو آگے چل کر اس کے قدر کا حصہ بنے، کچھ دوست بھی، کچھ دشمن بھی۔ کائی قبیلے پر دباؤ اب صرف افواہوں تک محدود نہیں رہا تھا، خطرہ حقیقت بن چکا تھا۔ چراگاہوں کے راستے تنگ ہو رہے تھے اور ارد گرد کے علاقوں میں منگول دستوں کی نقل و حرکت کی خبریں مسلسل آ رہی تھیں۔ سلیمان شاہ جانتے تھے کہ وقت اب صرف انتظار کا نہیں رہا، فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ فیصلہ حالات خود کر دیں گے۔ اسی دوران ایک دن قبیلے کے شکاری خالی ہاتھ لوٹے۔
उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि दूर दराज के इलाके में जले हुए खेमे, लाशें और लुटे हुए काफिले देखे गए हैं। ये आम डाकुओं का काम नहीं था, ये मुनज़्ज़म ताकत की निशानी थी। कबीले की मजलिस बुलाई गई। खेमे के अंदर खामोशी ऐसी थी जैसे हर सांस गिनी जा रही हो। गुंदो खुदू रिवायत और एहतियात की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कबीले को फौरन महफूज इलाकों की तरफ हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि खुले मैदान में रहना खुदकुशी के मुतरादिफ है। सुंगहुर्तगैन खामोश थे, मगर उनकी निगाहें जमीन पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के चेहरों पर थीं, जैसे वो दुश्मन को लफ्जों में नहीं अंदाज में पढ़ रहे हों। दुंदार बेजोश में थे। उनका दिल चाह रहा था कि फौरन तलवार उठाई जाए और खतरे को जड़ से काट दिया जाए। अर्तुगरुल ने बात सुनी, सबकी बात। फिर उसने आहिस्तगी से बोलना शुरू किया। इसकी आवाज में न जिद थी न खौफ। उसने कहा कि हिजरत अगर कमजोरी के साथ हो तो दुश्मन पीछा करता है, और जंग अगर अंधाधुंध हो तो कबीला टूट जाता है। पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है और किस नीयत से बढ़ रहा है। ये बात बहुत सूं को सख्त लगी, मगर सुलेमान शाह ने इसी राय को वजन दिया। चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल को पहली बार अमली जिम्मेदारी दी गई। ये उसकी पहली आजमाइश थी, जहां बात सिर्फ राय देने की नहीं बल्कि फैसला निभाने की थी। सुंगहुर्तगैन भी उसके साथ था, क्योंकि वो रास्ते और हालात को पढ़ने में माहिर समझा जाता था। ये छोटा सा दस्ता खामोशी से निकला, न ढोल न ऐलान, सिर्फ मकसद। रास्ते में जो मनाजिर उन्होंने देखे वो दिल दहला देने वाले थे। जले हुए खेमे, बिखरा हुआ सामान और खामोश जमीन। ये सब बता रहा था कि आने वाला वक्त रहम नहीं करेगा। इसी दौरान उन्हें दुश्मन के चंद आदमियों की मौजूदगी का अंदाजा हुआ। ये पहला मौका था जब अर्तुगरुल ने तलवार सिर्फ मश्क के लिए नहीं, हकीकत में हाथ में ली। झड़प मुख्तसर थी मगर फैसला कुन। अर्तुगरुल ने बराह रास्त हमले के बजाय घेराव का रास्ता अपनाया। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, और काई कबीले को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनके दरमियान एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो सिर्फ बहादुर नहीं, समझदार भी है। ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, मगर यह अर्तुगरुल की पहली अमली फतह थी अपने खौफ पर। जब वो वापस लौटे तो कबीले की फजा बदली हुई थी। लोगों की निगाहों में सवाल कम और उम्मीद ज्यादा थी। सुलेमान शाह ने सबके सामने अर्तुगरुल को नहीं सराहा, मगर रात को तन्हाई में उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा, याद रखो, आज तुमने दुश्मन को नहीं खुद को पहचाना है। मगर वक्त ने मोहलत नहीं दी। चंद ही दिन बाद एक बड़ा फैसला सामने आ खड़ा हुआ। दरिया के किनारे एक खतरनाक सफर, और वो हादसा जिसने काई कबीले की समत हमेशा के लिए बदल देनी थी। सुलेमान शाह जानते थे कि हर क़यादत की एक कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत जान से भी ज्यादा होती है। ये वो लम्हा था जहां से अर्तुगरुल की जिंदगी में सिर्फ सीखना नहीं, उठाना शुरू होना था। दरिया किनारे की हवा उस दिन कुछ भारी थी। काई कबीला हिजरत के मरहले में था, और हिजरत सिर्फ खैमे समेटने का नाम नहीं होती, ये दिलों को आजमाती है। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मवेशी सब एक लंबी कतार में चल रहे थे। सुलेमान शाह आगे थे घोड़े पर, मगर उनकी निगाहें पीछे कबीले पर थीं। वो जानते थे कि सरदार का काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। दरिया करीब आया तो शोर बढ़ गया। पानी बज़ाहिर पुरसकून था, मगर उसके अंदर की ताकत को सिर्फ वही जानता है जो उसे पार कर चुका हो। गुंदो गुदू ने एहतियात की बात की। उसका कहना था कि पहले रास्ता देखा जाए, पानी का बहाव परखा जाए, फिर कबीला आगे बढ़े। सुंगहुर्तगैन खामोशी से किनारे पर खड़ा पानी को देख रहा था, जैसे वो उसकी जबान समझने की कोशिश कर रहा हो। दुंदार बेचैन था। वो चाहता था कि देर ना हो, क्योंकि दुश्मन पीछे कहीं हरकत में ना आ जाए। सुलेमान शाह ने फैसला किया कि वो खुद पहले दरिया पार करेंगे। ये फैसला सिर्फ जुर्रत का नहीं था,
जिम्मेदारी का था। वो जानते थे कि अगर सरदार आगे ना बढ़े तो कबीला कभी एतमाद के साथ कदम नहीं रखता। अर्तुगरुल ने आगे बढ़कर साथ जाने की इजाज़त चाही, मगर सुलेमान शाह ने उसे पीछे रहने का हुक्म दिया। इस हुक्म में बाप की मोहब्बत भी थी और सरदार की बसीरत भी। जैसे ही सुलेमान शाह दरिया में उतरे, पानी ने अपना रंग बदल लिया। बहाव तेज था और घोड़ा एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया। वो लम्हा बहुत मुख्तसिर था, मगर तारीख के लिए काफ़ी। तवाज़ुन बिगड़ा। पानी ने अपनी गिरफ्त मजबूत की और देखते ही देखते सुलेमान शाह दरिया की मौजों में ओझल हो गए। एक चीख उठी, फिर खामोशी छा गई। अर्तुगरुल ने बेइख्तियार दरिया की तरफ दौड़ लगाई, मगर सुंगुरतगैन और गुंदुगुदू ने उसे रोक लिया। ये सिर्फ एक जान बचाने का सवाल नहीं था, ये पूरे कबीले के टूटने या जड़ने का लम्हा था। कुछ देर बाद जब सुलेमान शाह का जिस्म पानी से निकाला गया तो काई कबीला अपने सरदार से महरूम हो चुका था। गम ने खैमों पर कब्जा कर लिया। औरतों की सिसकियां, बच्चों की खामोशी और मर्दों की झुकी हुई निगाहें। हाइमा खातून ने सब्र का दामन थामा, मगर उनकी आंखों की नमी सब कुछ कह रही थी। इस रात आग जलती रही, मगर हरारत किसी के दिल तक न पहुंची। सरदार शाह के बाद सवाल उठा, अब कबीले की क़यादत कौन करेगा? गुंदो-गुदो उम्र और रवायत के एतबार से आगे था। दुंदार बेखून में जोश रखता था। सुंगुरतगैन खामोश था, मगर सब कुछ देख रहा था। और अर्तुगरुल के कंधों पर बाप की अमानत का बोझ आ चुका था, चाहे उसका ऐलान अभी ना हुआ हो। मजलिस पलाई गई, बातें हुईं, इख्तिलाफ भी हुआ। कुछ ने कहा कि कबीला मजीद बिखरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए फैसला जल्द होना चाहिए। कुछ ने एहतियात की बात की। अर्तुगरुल ने इस मजलिस में क़यादत का मुतालबा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो भी आगे आए, कबीले को जुल्म के सामने झुकने न दे। ये अल्फाज बहुत सूं के दिल में उतर गए। इसी रात अर्तुगरुल तन्हा बैठा आसमान को देख रहा था। बाप की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ताकतवर वो नहीं जो सब पर हुक्म चलाए, ताकतवर वो है जो मुश्किल वक्त में बोझ उठा ले। और अर्तुगरुल जान गया कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब हर कदम सिर्फ उसका नहीं होगा, कबीले का होगा। ये आगाज था एक ऐसे रास्ते का जिसके आखिर में सिर्फ फतह नहीं, कुर्बानी भी लिखी थी। यहीं से अर्तुगरुल का असल इम्तिहान शुरू होता है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर काई कबीले पर छाया हुआ बोझ हल्का नहीं हो रहा था। सुलेमान शाह के बाद खेमे तो वही थे, मगर उनमें रूह बाकी नहीं रही थी। हर शख्स जानता था कि अब कबीला सिर्फ दुश्मन के खतरे में नहीं, बल्कि अपने अंदर के फैसले के इम्तिहान में भी है। सुबह के वक्त मजलिस दोबारा बुलाई गई। ये आम मजलिस नहीं थी, ये वो लम्हा था जहां कबीला बिखर भी सकता था और जड़ भी सकता था। गुंदोगोदू ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज में तजर्बा था, मगर उसके लफ्जों में एहतियात खौफ के करीब महसूस हो रही थी। वो कह रहा था कि कबीला कमजोर है, लोग गमज़दा हैं। उस वक्त टकराव नहीं, बल्कि खामोशी और समझौता बेहतर रास्ता है। दुंदार बे ने बात काट दी। उसका लहजा तेज था, आंखों में गुस्सा। वो कह रहा था कि अगर आज दुश्मन को जवाब न दिया गया तो कल कबीले का नाम बाकी नहीं रहेगा। इसके नज़दीक इज्जत का मतलब लड़ाई था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। सुंगुरतुगैन अब भी कम बोल रहा था, मगर जब उसने बात की तो सब ने सुना। उसने कहा कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जल्दी में लिया गया फैसला दुश्मन को वो मौका दे देता है जिसका वो इंतज़ार कर रहा होता है। इसकी बात ने मजलिस में खामोशी पैदा कर दी। तब अर्तुगरुल खड़ा हुआ। उसने सरदारी का मुतालबा नहीं किया, उसने अपनी तारीफ नहीं की, उसने सिर्फ कबीले को आईना दिखाया। उसने कहा,
کہ اگر آج ہم صرف خوف سے ہجرت کریں گے تو دشمن ہمیں راستے میں مارے گا، اور اگر صرف غصے میں لڑیں گے تو قبیلہ خود ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں ایسا راستہ چاہیے جو ہمیں زندہ بھی رکھے اور باعزت بھی۔ کچھ چہرے نرم پڑ گئے، کچھ سخت ہو گئے، مگر سب نے محسوس کیا کہ یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں، تجربے کے ہیں۔ اسی دوران ایک زخمی قاصد خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی سانس اکھری ہوئی تھی۔ اس نے خبر دی کہ بازنطینی سرحد کے قریب کائی قبیلے کے چند افراد کو پکڑ لیا گیا ہے اور انہیں قلعے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ خبر کسی چنگاری کی طرح تھی۔ اب فیصلہ ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ گندگودو نے ہچکچاہٹ دکھائی۔ دندار بے فوراً تلوار کی طرف بڑھا، مگر سلیمان شاہ کی کرسی خالی تھی، اور اس خالی پن نے سب کو یاد دلایا کہ اب فیصلہ کسی ایک کو کرنا ہوگا۔ حائمہ خاتون نے پہلی بار مجلس میں آواز دی۔ اس کی آواز میں ماں کا درد تھا اور قبیلے کی عقل۔ اس نے کہا کہ جس نے آج قبیلے کے لیے قدم اٹھانا ہے وہی اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا۔ اور پھر اس نے نگاہ ارطغرل پر ٹھہرا دی۔ یہ اعلان نہیں تھا، مگر اشارہ واضح تھا۔ ارطغرل نے چند آدمی منتخب کیے، نہ زیادہ نہ کم۔ اس نے تیز حملے کے بجائے خاموشی کا راستہ چنا۔ یہ اس کی پہلی بڑی آزمائش تھی، جہاں اب ناکامی صرف اس کی نہیں، پورے قبیلے کی ہوتی۔ رات کی تاریکی میں وہ قلعے کے قریب پہنچے۔ سنگھرتگین نے راستے پہچانے۔ دندار بے تلوار کے ساتھ تیار تھا، اور گندگودو دور رہ کر حالات پر نظر رکھ رہا تھا۔ ارطغرل نے براہ راست لڑائی کے بجائے قیدیوں کو نکالنے کو ترجیح دی۔ مقصد جنگ نہیں تھا، پیغام دینا تھا۔ جب قیدی آزاد ہو کر قبیلے کی طرف لوٹے تو یہ پہلی بار تھا کہ لوگوں نے ارطغرل کو صرف سلیمان شاہ کا بیٹا نہیں بلکہ اپنا محافظ سمجھا۔ واپسی پر دشمن کا پیچھا ہوا اور ایک مختصر مگر شدید جھڑپ ہوئی۔ ارطغرل نے پہلی بار کھلے میدان میں قیادت کی۔ اس نے نہ غیر ضروری خون بہایا، نہ کمزوری دکھائی۔ یہی توازن اس کی پہچان بننے لگا۔ قبیلے میں واپسی پر کسی نے رسمی اعلان نہیں کیا، مگر خیموں کے درمیان ایک بات طے ہو چکی تھی۔ اب فیصلے کی گھڑی قریب تھی۔ رات کا آسمان ابھی بھی خاموش تھا جب کائی قبیلے نے وہ فیصلہ کرنا شروع کیا جس کا فیصلہ اب تک ٹالا جا رہا تھا۔ سلیمان شاہ کے جانے کے بعد سب جانتے تھے کہ اب کسی کا لفظ صرف بات نہیں، فیصلہ ہوگا۔ گندگودو نے دوبارہ مجلس میں بولنا شروع کیا۔ وہ بلند آواز میں نہیں بول رہا تھا، مگر اس کے لفظ بڑی وضاحت سے قبیلے کے دل و دماغ میں جا رہے تھے۔ ہم نے اپنے سردار کو کھو دیا ہے، اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ دشمن طاقتور ہے، اکیلے مقابلے کا وقت نہیں ہے۔ اس کی بات میں خوف نہیں، پرانے تجربات کی گونج تھی، ایسی گونج جو دلوں کو سختی کے بجائے احتیاط کی طرف لے جاتی۔ دندار بے نے سر ہلایا۔ وہ ارطغرل کا چھوٹا بھائی تھا اور اسے اپنے بڑے بھائی کی سچائی کا ادراک تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ارطغرل کی بات کو سنا جائے، کیونکہ وہ اپنے فیصلوں میں سوچ اور حکمت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا تھا۔ سگرتگین خاموشی سے پیچھے کھڑا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام بہت کم ملتا ہے، مگر وہ ہر بار ایسی گھڑیوں میں ظاہر ہوتا تھا جہاں خبر لانے، حالات ایک دیکھنے اور ریاستی تعلقات کے معاملات تھے۔ اس کا تعلق صرف خاندان سے نہیں تھا، بلکہ سلجوقی حکمرانوں کے ساتھ پس پردہ رابطوں کی وجہ سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ اکثر قبیلے کے فیصلوں میں سامنے کم نظر آئے۔ ارطغرل نے غور سے سب کی باتیں سنی۔ اس نے سنا کہ کس طرح گندگودو محتاط رہنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دوندار اس کے ساتھ ہے، اور سگرتگین جیسا خاموش مگر خبردار چشم بھی موجود ہے۔ لیکن اب وقت تھا کہ قیادت کا اعلان ہو، نہ مجرد مشوروں کی جنگ۔ ارطغرل نے آہستہ سے اٹھ کر کہا، ہمیں خوف، غم
या फकत ताकत के साथ नहीं लड़ना। हमें वो रास्ता चुनना है जिसमें हमारा नाम न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि हमारे लोगों का सबसे ज्यादा भला हो। ये कोई सिर्फ जुर्रत का ऐलान नहीं था, ये एक ऐसी सोच थी जिसमें न सिर्फ लड़ाई बल्कि कबीले का मुस्तकबिल शामिल था। चंद लम्हों के बाद कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत को बाकायदा कबूल कर लिया, न सिर्फ उसकी बहादुरी की वजह से बल्कि उसकी सोच और हिकमत के लिए। गुंदुगुदो ने इस्तराब के साथ अपने भाई का हाथ थामा और कहा, हम तेरे साथ हैं मगर मोहतात भी रहेंगे। दुंदार ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने भाई को सलाम किया, और सुहरतगीन ने जिस खामोशी से हमेशा काम किया था, इसी खामोशी से अपने भाई की नजरें देखीं, जैसे वो ऐलान करता हो कि अब हर खबर, हर खबरगिरी, हर चाल वो सही वक्त पर बताएगा। सरदारी के ऐलान के बाद काई कबीला बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर हर शख्स जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अर्तुगरुल सरदार बन चुका था, मगर सरदारी अब लफ्ज़ नहीं रही थी, जिम्मेदारी बन चुकी थी। कबीले का पहला जरगा ज्यादा देर न चला। गुंदुगुदो ने सिर्फ इतना कहा कि हालात नाजुक हैं और एहतियात ज़रूरी है। दुंदार ने एक ही बात कही कि कबीला अब पीछे नहीं हट सकता। सुहरतगीन ने मुख्तसर खबर दी कि सल्जूकी इलाकों में बेचैनी बढ़ रही है। अर्तुगरुल ने फैसला सुनाया कि काई कबीला इज्जत के साथ अपना रास्ता खुद चुनेगा। फैसला होते ही जरगा खत्म हो गया। इसी दिन से कबीले की फजा बदलने लगी। अब लोग सिर्फ खैमों की फिक्र नहीं कर रहे थे बल्कि आने वाले कल की बातें हो रही थीं। अर्तुगरुल जानता था कि दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, कभी वो आजमाइश बनकर आता है। काई कबीला अब एक मोड़ पर आ चुका था। छोटी झड़प के बाद इर्द गिर्द के कबाइल और सरहदी ताकतें ये समझ चुकी थीं कि ये कबीला अब बगैर सरदार के नहीं। अर्तुगरुल का नाम आहिस्ता आहिस्ता खीमों से निकलकर रास्तों तक पहुंचने लगा था। इसी दौरान कबीले के मुस्तकबिल पर आखिरी फैसला दरकार था। क्या काई कबीला इसी इलाके में रुके या आगे बढ़े? ये फैसला महज जगह का नहीं था, बका का था। एक मुख्तसर जरगा हुआ। गुंदुगुदो ने कहा कि बिखरना नुकसान से बचा सकता है। दुंदार ने कहा कि इकट्ठे रहना ही ताकत है। सुहरतगीन ने बस इतना बताया कि मंगोल खतरा करीब आ रहा है। अर्तुगरुल ने फैसला सुनाया कि कबीला मुत्तहिद रहेगा और आगे बढ़ेगा। फैसला होते ही बात खत्म हो गई। ये फैसला आसान नहीं था। कुछ खानदान मुतमईन नहीं थे, मगर ज्यादातर लोग जानते थे कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। अर्तुगरुल ने किसी को जबरदस्ती नहीं रोका, मगर जो रुका उसके सामने मकसद साफ रख दिया गया। इन्हीं दिनों कबीले ने नकल मकानी की तैयारी शुरू की। खेमे समेटे गए, सामान बांधा गया और मवेशियों को एक तरतीब में चलाया गया। ये सिर्फ सफर नहीं था, ये एक नए दौर की तरफ कदम था। रवानगी से पहले अर्तुगरुल ने कबीले के जवानों को मुख्तसर सा पैगाम दिया। उसने कहा कि हम जमीन की तलाश में नहीं निकल रहे, हम इज्जत की तलाश में निकल रहे हैं। इस जुमले ने थके हुए चेहरों में जान डाल दी। अर्तुगरुल गाजी की क़यादत में काई कबीले का वो हिस्सा जो मगरिब की तरफ बढ़ा, इनातुलिया के उस खित्ते में दाखिल हुआ जो उस वक्त सल्जूक रूम की सल्तनत के ज़ेरे असर था। ये ज़माना 13वीं सदी का वस्त था, जब सल्जूकी इक़्तिदार कमज़ोर हो चुका था और सरहदी इलाकों में तुर्कमान कबाइल को दिफाई मकासद के लिए आबाद किया जा रहा था। मौर्रिखीन के मुताबिक अर्तुगरुल और उसके कबीले ने इब्तदा में मुस्तकिल जंग के बजाय महदूद क़याम की पॉलिसी इख्तियार की। इस दौर में काई कबीला न तो किसी बड़े मार्के का मरकज़ था और न ही किसी वसी फतह का। उनका बुनियादी मकसद चिरागाहों का हुसूल, मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ और मकामी ताकतों के साथ तसादुम से बचाव था। इस मरहले पर अर्तुगरुल गाजी का जिक्र ज़्यादातर एक सरहदी तुर्क सरदार के तौर पर मिलता है, जो सल्जूकी इक़्तिदार के मातहत रहते हुए बाज़ंतीनी सरहद के करीब आबाद था।
بعد کے عثمانی مورخین لکھتے ہیں کہ اسی سرحدی ماحول نے قائی قبیلے کو فوجی نظم و ضبط اور سیاسی احتیاط سکھائی۔ دوندار بے اس عرصے میں ارطغرل کے ساتھ موجود تھا اور قبیلے کے داخلی نظم میں اس کا کردار دو ثانوی مگر مستحکم تھا۔ گندو غدو بے کا اس مرحلے پر اناتولیہ سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے ہی قبیلے کے ایک حصے کے ساتھ مشرقی علاقوں کی طرف جا چکا تھا۔ سغرتگین کے بارے میں اس دور کی تاریخ خاموش ہے، جس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اس ہجرت اور قیام کا عملی حصہ نہیں تھا۔ بازنطینی سرحد کے قریب ترک قبائل کی موجودگی ایک مستقل حقیقت تھی، مگر اس زمانے میں کسی بڑی جنگ یا فیصلہ کن مارکے کا مستند ذکر ارطغرل کے نام سے نہیں ملتا۔ جو جھڑپیں ہوئیں وہ مقامی نوعیت کی تھیں اور ان کا مقصد علاقائی توازن برقرار رکھنا تھا، نہ کہ فتوحات۔ سلجوقی ریاست اس وقت منگول دباؤ کا شکار تھی اور اسی وجہ سے سرحدی ترک سرداروں کو مکمل کنٹرول میں رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہی خلا بعد کے اشروں میں نئے سیاسی ڈھانچوں کی بنیاد بنا، مگر ارطغرل کے دور میں یہ صرف ایک پس منظر تھا، کوئی براہ راست تحریک نہیں۔ ارطغرل غازی کے دور میں اناتولیہ کی سیاسی صورتحال واضح طور پر غیر مستحکم تھی۔ سلجوق روم کی سلطنت اگرچہ رسمی طور پر موجود تھی، مگر منگول یلغار کے بعد مرکزی اختیار کمزور ہو چکا تھا۔ اس کمزوری کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرحدی علاقوں میں ترکمان قبائل کو عملی طور پر اپنی بقا کے فیصلے خود کرنے پڑتے تھے۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی اسی نوعیت کے انتظامی خلا میں موجود تھا، جہاں بقا، نقل مکانی اور دفاع اولین ترجیحات تھیں۔ اس مرحلے پر قائی قبیلہ نہ تو مستقل شہری نظام کی طرف بڑھا اور نہ ہی وسیع عسکری مہمات کا حصہ بنا، بلکہ حالات کے مطابق اپنی موجودگی برقرار رکھنے پر توجہ دی گئی۔ تاریخی اعتبار سے یہی وہ دور تھا جس میں مستقبل کی تبدیلیوں کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، مگر خود ارطغرل کے زمانے میں اس کے نتائج نمایاں نہیں ہوئے۔ ان کے اقدامات کا دائرہ محدود، محتاط اور حالات کے تابع رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین ارطغرل کے دور کو فتوحات کا زمانہ نہیں بلکہ ایک عبوری مرحلہ قرار دیتے ہیں، جہاں قبائلی نظم، سرحدی استحکام اور سیاسی خلا نے آگے چل کر ایک نئی قوت کے ابھرنے کی راہ ہموار کی، جس کا ظہور اگلی نسل میں ہوا۔ ارطغرل غازی کے دور میں اناتولیہ کی سیاسی و عسکری صورتحال محدود مگر اہم تھی۔ قائی قبیلہ سلجوق روم کے ماتحت سرحدی علاقے میں آباد تھا، جہاں ان کا بنیادی کردار سرحد کی نگرانی، چراگاہوں کا تحفظ اور قبیلے کی بقا تھا۔ مورخین کے مطابق ارطغرل کے زیر قیادت قائی قبیلہ بڑی جنگوں میں حصہ نہیں لے سکا۔ ان کے عسکری اقدامات زیادہ تر حفاظتی نوعیت کے تھے اور مقامی قبائل یا بازنطینی حملوں کے رد عمل تک محدود تھے۔ اس دور میں قائی قبیلے کی نقل و حرکت موسمی حالات اور چراگاہوں کے مطابق تھی اور مستقل قبضہ یا شہری انتظام قائم نہیں ہوا تھا۔ اس دور میں سرحدی علاقوں میں بسنے والے ترکمان قبائل کے درمیان باہمی تعلقات بھی ایک مستقل چیلنج بن چکے تھے۔ چراگاہوں، پانی کے ذرائع اور نقل و حرکت کے راستوں پر اختلافات معمول کی بات تھے۔ ارطغرل نے ان معاملات میں طاقت کے بے جا استعمال سے گریز کیا اور زیادہ تر مصالحانہ راستہ اختیار کیا تاکہ قائی قبیلہ غیر ضروری دشمنیوں میں نہ الجھے۔ یہ طرز عمل وقتی طور پر سست محسوس ہوتا تھا، مگر طویل مدت میں قبیلے کے استحکام کا باعث بنا۔ عثمان کو انہی حالات میں ذمہ داری کا پہلا عملی احساس ملا۔ اسے بعض اوقات چھوٹے دستوں کے ساتھ پیغام رسانی، راستوں کی نگرانی اور قبیلے کے مفادات کی نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا۔ یہ ذمہ داریاں بظاہر معمولی تھیں، مگر قیادت کے نقطہ نظر سے انتہائی اہم سمجھی جاتی ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے عثمان نے اعتماد، ضبط اور فیصلہ سازی کی ابتدائی مشق کی۔ اسی عرصے میں قبیلے کے اندر یہ احساس بھی مضبوط ہونے لگا کہ مستقبل میں قیادت کا بوجھ نئی نسل کو اٹھانا ہوگا۔ بزرگ سردار آہستہ آہستہ عملی امور نوجوانوں کے سپرد کرنے لگے، مگر نگرانی اور رہنمائی اپنے ہاتھ میں رکھتے۔
तारीखी रिवायत बताती है कि उस्मान को ख़ास तौर पर कबायली नज़्म, लोगों के मिजाज और इख्तलाफात को संभालने के तरीक़े से सिखाए गए। सरहदी माहौल मुसलसल गैर यकीनी था। कभी बाज़ंतीनी किलों से दबाव बढ़ जाता और कभी मकामी ताकतें अपने असर व रसूख को वुसअत देने की कोशिश करतीं। ऐसे में काई कबीले का रवैया दिफाई रहा, मगर मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल नहीं। वो अपने वजूद, चरागाहों और रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। उस्मान इस तैयारी का हिस्सा बनकर ये सीख रहा था कि ताकत का असल इस्तेमाल कब और कहाँ ज़रूरी है। ये मरहला काई कबीले के लिए सिर्फ बका का नहीं, बल्कि तब्दीली की खामोश तैयारी का दौर था। अर्तुगरुल की क़यादत में कबीला अपने कदम मजबूत कर रहा था और उस्मान रफ्ता रफ्ता इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रहा था जो आने वाले वक्त में इसके कांधों पर आनी थी। वक्त के साथ साथ काई कबीले के सरहदी इलाके मजीद हसास होते चले गए। बाज़ंतीनी हुदूद के करीब रिहाइश का मतलब ये था कि हर फैसला नाप तोल कर करना पड़ता था। किसी एक गलत कदम से न सिर्फ कबीला बल्कि उसके ख़ानदान और चरागाहें भी ख़तरे में पड़ सकती थीं। इसी माहौल में अर्तुगरुल ने नौजवानों को ये सिखाया कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता होती है और असल कामयाबी कबीले को महफूज रखने में है। उस्मान अब सिर्फ सीखने वाला नहीं रहा था, बल्कि बाज़ मौक़े पर छोटे फैसलों की जिम्मेदारी भी उसे सौंपी जाने लगी। गश्त के औक़ात, रास्तों के इंतखाब और काफ़िलों की हिफाजत जैसे मामलात में उसकी राय पूछी जाती। ये फ़ैसले महदूद दायरे में होते थे, मगर उनका मकसद उस्मान को ये समझाना था कि क़यादत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि नताइज की जिम्मेदारी कबूल करना भी है। इसी अरसे में कबीले के अंदर नज़्म व ज़ब्त को मज़ीद मजबूत किया गया। चरागाहों के इस्तेमाल, मवेशियों की तक़सीम और सफ़र के औक़ात तय किए गए ताकि किसी अंदरूनी इख्तलाफ को सर उठाने का मौका न मिले। उस्मान ने इन इंतज़ामात को करीब से देखा और ये समझा कि ताकत सिर्फ हथियार में नहीं बल्कि निज़ाम में भी होती है। सरहदी दबाव के बावजूद काई कबीला गैर ज़रूरी झड़पों से बचता रहा। अगर कहीं तनाव बढ़ता तो पहले बातचीत, फिर महदूद दिफाई तैयारी की जाती। तारीख़ी तनाजुर में यही हिकमत अमली कबीले को बड़े नुकसानात से बचाती रही। उस्मान इस अमल का हिस्सा बनकर ये सीख रहा था कि सब्र, बर्दाश्त और दुरुस्त वक्त का इंतखाब किस तरह मुस्तक़बिल की राह हमवार करता है। अर्तुगरुल गाजी के अहद के इस मरहले तक पहुँचते पहुँचते काई कबीला महज एक खाना बदोश जमात नहीं रहा था, बल्कि इनातोलिया के गैर मुस्तहकम सियासी माहौल में एक पहचानी जाने वाली ताकत बन चुका था। ये ताकत किसी वसी सल्तनत या बड़े लश्कर की सूरत में नहीं थी, बल्कि नज़्म, इत्तेहाद और मुस्तकिल क़यादत की सूरत में थी, जिसकी बुनियाद अर्तुगरुल ने बरसों की जद्दोजहद से रखी थी। मंगोल दबाव, बाज़ंतीनी सरहदी कशमकश और सल्जूकी इक़्तिदार की कमज़ोरी के दरमियान काई कबीला अब एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसे नज़रअंदाज करना मुमकिन न था। इस दौर में अर्तुगरुल की ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा फतूहात के बजाय तवाज़ुन बरकरार रखने में गुजरा। वो जान चुका था कि हर तलवार उठाना फतह नहीं लाता और हर जंग कबीले के मफाद में नहीं होती। इसी शऊर ने उसे दूसरे तुर्कमान सरदारों से मुख्तलिफ बनाया। इसकी मजलिस में अब जंग से ज़्यादा मुशावरत होती, चरागाहों की तक़सीम, कबायली नज़्म, अदल और दाखिली इख्तलाफात के हल पर बात होती। अर्तुगरुल की क़यादत अब सिर्फ एक जंगजू की नहीं बल्कि एक बुज़ुर्ग सरदार की थी, जिसके फ़ैसले वक्ती फ़ायदे के बजाय आने वाले वक्त को देखकर किए जाते थे। काई कबीले के अंदरूनी ढांचे में भी वाज़ेह तब्दीली आ चुकी थी। ख़ानदानी निज़ाम मजबूत हो चुका था। सरदारी का तसव्वुर महज नसब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अहलियत और जिम्मेदारी से जुड़ गया था। अर्तुगरुल खुद इसकी मिसाल था। वो अपने बेटों को महज जंगी तरबियत नहीं दे रहा था, बल्कि नज़्म, सब्र और क़यादत के उसूल सिखा रहा था। इसकी नज़र इस बात पर थी कि इसके बाद कबीला इंतशार का शिकार न हो, जैसा कि उसने अपने इर्द गिर्द कई तुर्कमान गिरोहों के साथ होते देखा था। इसी दौरान इनातोलिया में ताकत का खला मज़ीद गहरा हो रहा था। सल्जूक़े रोम के हुक्मरान मंगोल असर के तहत थे। फैसले मरकज़ से कम और हालात के दबाव से ज़्यादा हो रहे थे।
ऐसे में सरहदी कबाइल की अहमियत बढ़ गई थी। अर्तुगरुल इस हकीकत को समझता था, मगर वो खुद को किसी बड़े सियासी खेल का महरा बनाने से गुरेज करता रहा। इसकी हिकमत अमली खामोश मजबूती थी, शोर के बगैर आगे बढ़ना और तसादुम के बजाय मौका को पहचानना। बाज़ंतीनी सरहद के करीब काई कबीले की मौजूदगी अब वक्ती नहीं रही थी, ये मुस्तकिल क़याम की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। किलों के साए में बसने वाले तुर्क कबाइल अब सिर्फ हमला आवर नहीं समझे जाते थे, बल्कि एक ऐसी कुव्वत के तौर पर देखे जाते थे जो इलाके में नज़्म कायम रख सकती थी। ये सब किसी बड़ी जंग के बगैर हुआ, और यही अर्तुगरुल की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उसने खूनरेज़ी के बगैर ज़मीन पर गिरफ्त मजबूत की। अर्तुगरुल के इस दौर की ज़िंदगी में खामोशी गालिब आ चुकी थी। वो कम बोलता, ज़्यादा देखता था। कबीले के फैसले अब इज्तिमाई मुशावरत से होते, मगर आखिरी वज़न इसकी राय का ही होता। इसके अल्फाज कम थे, मगर असर रखते थे। वो जानता था कि क़यादत सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में दुरुस्त फैसला करने का नाम है। ये वो मरहला था जहां अर्तुगरुल की शख्सियत एक तारीखी पल बन चुकी थी। एक तरफ वो कदीम तुर्कमान रिवायात का अमीन था, और दूसरी तरफ एक नए सियासी नज़्म की बुनियाद रख रहा था, जिसका शऊरी ऐलान इसने कभी नहीं किया, मगर इसके अमल खुद बोलते थे। काई कबीला अब बका के मरहले से निकलकर तसलसल के मरहले में दाखिल हो चुका था। अर्तुगरुल गाजी के आखिरी बरसों में काई कबीला ज़ाहिरी तौर पर पुरसकून था, मगर यह सुकून किसी ठहराव का नहीं, बल्कि एक मरहले के इख्तिताम का इशारा था। वो सरदार जो बरसों तक नकल मकानी, दबाव और ख़तरात के दरमियान कबीले को संभालता रहा था, अब जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो चुका था, मगर ज़हनी तौर पर पहले से ज़्यादा वाज़े और मजबूत था। उसकी नशिस्तों में अब तलवार कम और बात ज़्यादा होती थी, और उसकी गुफ्तगू में मुस्तकबिल की फ़िक्र नुमाया नज़र आती थी। इन बरसों में अर्तुगरुल ने कबीले के नज़्म को हतमी शक्ल दी। उसने वाज़े कर दिया कि क़यादत महज ताकत से नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी और अदल से चलती है। कबाइली मामलात में इसका झुकाव अब फौरी रद्द-ए-अमल के बजाय मुस्तकिल हल की तरफ था। चरागाहों, बाहमी इख्तिलाफात और सरहदी मामलात में वो तवाज़ुन चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाद कबीला अगर मुंतशिर हुआ तो बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तारीख़ी हवालों के मुताबिक इस ज़माने में अर्तुगरुल बराह रास्त किसी बड़ी जंग या मुहिम में शरीक नहीं रहा। इसकी वजह खौफ या कमज़ोरी नहीं, बल्कि तजुर्बा था। वो जान चुका था कि इसका असल किरदार अब लड़ना नहीं, बल्कि रास्ता हमवार करना है। यही वो सोच थी जो इसे महज एक कबाइली सरदार से आगे ले जाकर एक तारीख़ी किरदार बनाती है। काई कबीले के अफराद अर्तुगरुल को अब एक बुज़ुर्ग के तौर पर देखते थे। इसके फैसले कम थे, मगर आखिरी होते थे। वो खामोशी से देखता कि कबीला किस सिमत जा रहा है, और ज़रूरत पड़ने पर सिर्फ एक जुमला कहकर पूरी मजलिस का रुख बदल देता। इसकी मौजूदगी ही नज़्म की अलामत बन चुकी थी। वक्त के साथ इसकी सेहत मज़ीद कमज़ोर होती गई। वो अब ज़्यादा वक्त खेमे में गुजारता, मगर कबीले के मामलात इससे ओझल नहीं थे। लोग मशवरे के लिए अब भी इसी के पास आते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये वो शख्स है जिसने सब कुछ देखा है। हिजरत, ख़तरा, अदम इस्तेहकाम और बका। इसका तजुर्बा कबीले का सबसे कीमती सरमाया था। अर्तुगरुल की आखिरी अय्याम में सबसे नुमायां बात यह थी कि इसने किसी किस्म की जल्दी या हंगामी फैसला नहीं किया। इसने कबीले को इस हाल में छोड़ने की कोशिश की कि इसके बाद खला ना पैदा हो। यही वजह है कि इसकी वफ़ात किसी फौरी बहरान का सबब नहीं बनी, बल्कि एक तयशुदा हकीकत के तौर पर कबूल की गई। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक अर्तुगरुल गाज़ी का इंतकाल इनातुलिया में हुआ, जहाँ इसने बरसों क़याम किया था। इसकी वफ़ात किसी जंग में नहीं हुई, बल्कि एक तबई अंजाम था, जैसा कि अक्सर वो लोग पाते हैं जो अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जद्दोजहद में गुजार चुके हों। इसकी मौत के साथ काई कबीले का एक तवील और मुश्किल दौर इख्तिताम पजीर हुआ। अर्तुगरुल गाज़ी की वफ़ात सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, बल्कि एक अहद का खातिमा था। वो अहद जिसमें बका सबसे बड़ा सवाल था, और क़यादत का मतलब जिंदा रहना था। इसके बाद आने वाला ज़माना मुख्तलिफ था, नए मौक़े और नए चैलेंजेस के साथ।